So in the last session, we have completed with the preparation methods and chemical properties or reactions of benzene. Now in the next session, we are going to continue with the double electrophilic substitution reaction. So what is this double ESR? If there is already a substituent on the benzene, and if I do the electrophilic substitution reaction again, then that electrophile can get attached to three of the possible positions on the benzene. जैसे अगर मेरे पास एक substituent already benzene पे है, let's say S1 substituent, and if I once again perform the electrophilic substitution reaction with an electrophile, let's say E2 plus, then this E2 plus can get substituted at ortho, meta or para, meaning there are three available positions. अब कौन सी position पे जाएगा, that will be decided by S1. तो S1 जो है, the substituent can either be electron donating group or it can be electron withdrawing group. If it is electron donating group, it will donate the electrons and the electron density on the ring will increase. Because of the increase in electron density, the electrophile with a positive charge can attack more easily. Because of that, we say the ring is activated. The ring is activated. And in this type of activation, there is a negative charge which is concentrated on ortho and para position. So in that case, the electrophile will be directed at ortho or para position, giving you two products, ortho substituted and di substituted. Mainly ortho substituted and para substituted. So mainly in दोनों में से the para substituted product will be the major because of lesser repulsion as they are far apart from each other. Case 2, if there is electron withdrawing group on the ring, then it will withdraw the electrons, making the ring to be electron deficient. अब क्योंकि ring already deficient है, electrophile का attack करना मुश्किल हो जाएगा. In that case, we say the ring is deactivated. And deactivation के time पे, because of the electron withdrawing nature, there is a positive charge developed on the ortho and para position. अब क्योंकि ortho para पे already positive है, electrophile which is already with a positive charge can't attack those positions. इसलिए in case of deactivation, electrophile जाता है meta पे. इसलिए in that case we say it is meta directing. So that's about the directive influence of a functional group in a mono substituted benzene. और जब दूसरा electrophile आके substitute करेगा, so that is the concept which we call it as double ESR, double electrophilic substitution reaction. ठीक है, तो अब ये directive influence को समझने के लिए I had given three cases, case 1, case 2 and case 3. So case 1, when the substituent is electron donating group. अब जब वो electron donating group substitute रहता है benzene पे, the type of resonance which we observe is plus R. Yes, sir. plus R, that is positive resonance effect. अब plus R effect के केस में जैसे मैंने explain किया, donate कर रहा है तो ring की electron density बढ़ेगी and the ring will be more activating. यानी बेंजीन से ये सारे जो प्लस आर वाले एग्जाम्पल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, सो दे आर एक्टिवेटिंग. और एक्टिवेट होने के साथ साथ जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है that will be directed at ortho या para position. Hence we say the conclusion of plus R is activating and OP directing. Now what are the common examples to be remembered as a mnemonic? Papat. Papat. So papat refers to phenoxide, aniline, phenol, anisole, toluene. Phenoxide, aniline, phenol, anisole and toluene. तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल्स है जो मैं हमेशा आपको प्लस आर के लिए देता हूँ. लेकिन इसके अलावा देयर आर फ्यू अदर
positive resonance groups which are important to be remembered as per their reactivity order. तो ये काफी आसान हो जाता है once you remember Papert. So I'll start with the most reactive plus R group, that is phenoxide. phenoxide के बाद aniline है, लेकिन aniline के पहले अगर हमारे पास डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड aniline है versus if I have just aniline, then because of the two alkyl groups, the electron donation will be easier or it is going to be difficult? easier. Easier, because alkyl groups क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, तो वो डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा हो जाएगी एंड उसकी वजह से द डोनेशन विल बी इजी. ठीक है, तो वैसे ही इफ आई हैव वन अल्काइल ग्रुप देन इट विल बी बेटर एक्टिवेटिंग एज कंपेयर टू नो अल्काइल ग्रुप. मतलब पापत में फिनॉल और एनिलीन के बीच में मान लो अगर डाइअल्काइल या मोनोअल्काइल सब्स्टिट्यूटेड आता है तो फिर उनका रिएक्टिविटी या एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा होगा. ठीक है, ये जो सिनॉप्सिस मैंने दिया है उसी में एड ऑन करो प्लस आर का. ये पूरा जो सीक्वेंस मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद फिनॉल और एनिसॉल का ऑर्डर एज इट इज, यानी OH एंड OCH3. एनिसॉल मतलब ईथर फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, अब बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज टोलुइन CH3 या एनी अल्काइल ग्रुप, R लिख लेता हूं, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप. देयर आर टू अदर ग्रुप्स व्हिच आर मोर एक्टिवेटिंग देन अल्काइल ग्रुप. अब मान लो ये NH2 का H की जगह I have a acetyl group substituted here, C double bond O CH3. Then tell me, because of this carbonyl group, what will happen to the lone pair? Delocalized. Delocalize हो जाएगा. अगर ये delocalize हो जाता है because of resonance और carbonyl का electron withdrawing nature है, तो the availability of lone pair to be donated on the benzene will be Yes. lesser. मतलब ये तो समझ में आता है कि NH2 के कंपैरिजन में एसिटाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल बी लेस एक्टिवेटिंग. डू यू एग्री? Yes. Yes. Sir. सिमिलरली फिनॉल का H को उड़ाकर अगर मैं एसिटाइल ग्रुप लगा देता हूं C डबल बॉन्ड O CH3, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी OH के कंपैरिजन में कम है. लेकिन इन दोनों का जो डोनेटिंग पावर है वो अल्काइल से ज्यादा होगा. क्यों? बिकॉज दीज ग्रुप्स आर डोनेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस बट अल्काइल ग्रुप्स आर डोनेटिंग ड्यू टू Yes, sir. ना 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 ना. मिथाइल अगर बेंजीन पे है तो द डोनेशन इज ड्यू टू Conjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है हाइपर कॉन्जुगेशन से. एज पर द ऑर्डर आई ऑलवेज से RHI. R is more effective than H and H is more effective than I. तो इवन यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होता है. देयर इज सम डोनेशन व्हिच इज पॉसिबल थ्रू रेजोनेंस. It's just that NH2 के कंपैरिजन में NHCOCH3 is less activating. Similarly, OH के कंपैरिजन में OCOCH3 is less activating. समझा? Yes, sir. उसके बाद if I have a phenyl group bonded to the benzene, यानी बाइफिनाइल हो गया ना, बेंजीन के साथ बेंजीन is called biphenyl. तो यहाँ पर when there is a biphenyl molecule, then these pi bonds are in conjugation. ये पूरा सिस्टम जो है conjugated सिस्टम हो जाता है. Now because of the conjugation, obviously जो यहाँ पर इसका donating power होगा that will be very less. तो ये जो towards the end लिख रहा हूँ they are less activating या weakly activating groups बोलते हैं. फिनाइल हो गया या फिर डबल बॉन्डेड सिस्टम में विनाइल हो गया CH डबल बॉन्ड Cr2.
ये फिनाइल है और ये विनाइल है। ठीक है, सो यहाँ पर फिनाइल और विनाइल जब लगाते हैं ऑन द बेंजीन, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द प्लेनार सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ द प्लेनारिटी दे आर सेड टू बी वीकली एक्टिवेटिंग। वीकली एक्टिवेटिंग। तो मैंने जो आपको एग्जांपल पहले से दिया है उसी में मैंने ऐड ऑन किया है, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर द एंटायर ऑर्डर। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द मेन एग्जांपल्स, इट्स फिनॉल, एनिलीन, सॉरी फिनॉक्साइड, एनिलीन, फिनॉल, एनिसॉल एंड टोलुइन। पापा तो ऑलरेडी आपको ध्यान है। अब जस्ट एनिलीन के पहले अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स का ज्यादा रिएक्टिविटी है, और एनिसॉल के बाद इसी का एक मॉडिफिकेशन बताया जिसमें अगर एसिटाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो या एसिटाइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी हो तो उनका रिएक्टिविटी इन दोनों से कम हो जाएगा। और फिर अपना टोलुइन एंड देन फिनाइल एंड विनाइल एज वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इफ दे आस्क द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, एंड ऑप्शंस में ये सारे ग्रुप्स दिए हैं तो ऑर्डर इसी तरह रहेगा। एनिलीन ग्रेटर देन फिनॉल, ग्रेटर देन एनिसॉल, ग्रेटर देन मे बी फिनाइल, और बाइफिनाइल कंपाउंड जो दिया रहेगा। ठीक है, तो एक बार ये ऑर्डर याद रखा आपने तो कोई भी क्वेश्चन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के ऊपर आया, यू आर डेफिनेटली एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, ये पूरा लिख लो आप प्लस आर के एग्जांपल्स में एज इट इज। ये परफेक्ट ऑर्डर है जो ध्यान रखना है। ठीक है, now coming to the next one, that is case 2. Case 2 is when the substituent is of withdrawing nature. The type of the resonance effect now is minus R effect, negative resonance effect. Now, because of electron withdrawing nature, the ring is said to be deactivating. मतलब इन सब सब्स्टिट्यूएंट्स का जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से कम हो जाएगा, एंड जो इलेक्ट्रोफाइल है नाउ इट विल बी डायरेक्टेड एट द मेटा पोजीशन. द कंक्लूजन ऑफ माइनस आर इज deactivating and M directing. Now, what were the examples related to this? CNS Akai. CNS अकाई, जिसमें ऑर्डर अगर मैंने पूछा तो CNS का ऑर्डर क्या था? NCS. NCS, नाइट्रो साइनो सल्फोनिक एसिड, एंड अकाई एज पर द ऑर्डर ही है। ठीक है, अब नाइट्रो से भी ज्यादा डीएक्टिवेटिंग एक और एग्जांपल है, नाइट्रो से भी ज्यादा। इट इज CF3, a strongly deactivating group because of minus I effect of the 3 fluorine atoms. Minus I effect of 3 fluorine atoms. तो CF3 के अलावा जो हमारे कॉमन एग्जांपल है वो मैं लिख लेता हूं, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, NS और C यानी साइनो। ठीक है, अब इनके अलावा देयर आर फ्यू अदर एग्जांपल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, जैसे नाइट्रो और सल्फोनिक एसिड के बीच में द अमोनियम आयंस आर आल्सो डीएक्टिवेटिंग। अमोनियम आयंस डीएक्टिवेटिंग इसलिए होंगे बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दे विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इनका जो विड्रॉइंग पावर है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड विद सल्फोनिक और द साइनो ग्रुप। तो NSC के बीच में, N और S के बीच में रादर अमोनियम आयंस आते हैं, उसमें भी जो ट्राई अल्काइल है ना वो ज्यादा डीएक्टिवेट करते हैं,
बिकॉज यहाँ पर इनका स्टेरिक फैक्टर भी एक अनस्टेबिलिटी का रीजन होगा, इसलिए ये ज्यादा डीएक्टिवेट करता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल अमोनियम आयन। और साइनो के बाद है CCl3। टोलुइन को जब क्लोरीनेट करते हैं यूवी के प्रेजेंस में विद क्लोरीन टेकन इन एक्सेस, वी गेट द ट्राइक्लोरोमीथाइल बेंजीन CCl3। और ये अगर हम कोई CCl3 वाला बेंजीन अगर हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने जाए, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था दैट दिस मेक्स द रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। और अब कोई भी रिएक्शन जब करोगे तो मेटा पे जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. उसके बाद अकाई के पहले वी हैव वन मोर दैट इज असाइल क्लोराइड, एंड देन वी हैव अकाई दैट इज एसिड ईस्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसका डीएक्टिवेशन पावर ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट कंपैरेटिव लिखूं तो कीटोन का थोड़ा ज्यादा डीएक्टिवेटिंग पावर है बिकॉज ऑफ द bulkiness caused by one alkyl group as compared to aldehyde, just small difference. तो once again जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे उसके अलावा आपको याद रखना है, तो जो एग्जांपल्स मैंने बताए थे नाइट्रो सल्फोनिक एसिड साइनो NSC, देन आपके पास आता है अल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अकाई में ऑर्डर जो है ना वो एसिड ईस्टर अल्डिहाइड और कीटोन का है। मेन आपका NSC का है जो मैंने अब तक आपको बताया था, लेकिन अब अगर कुछ ऑर्डर आ जाता है तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेम्बर। तो N के पहले CF3, NSC के बाद में CCl3, ये एक्सट्रीम्स हो गए। और N और S के बीच में अमोनियम आयंस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। और अकाई के पहले अपना असाइल क्लोराइड, उसमें जो ऑर्डर है वो एसिड ईस्टर कीटोन एंड अल्डिहाइड, सॉरी कीटोन एंड अल्डिहाइड। समझा? Yes, sir. Then we move to the case 3, which is considered as an exception. exception, and that is mainly having the example of Chlorine. क्लोरीन या जनरल हैलोजन। तो क्लोरीन या हैलोजेंस जो है उसमें लोन पेयर होने की वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं, लेकिन बिकॉज हैलोजेंस आर electronegative, their minus I is very strong, and that is why the ring is said to be deactivating. The halogens में the ring is deactivating, but the electrophile will be directed at ortho and para position. ठीक है? अब halogen के अलावा there is one more very important example, और वो है N double bond O group, which is named as nitroso. N double bond O named as nitroso. NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, NO just NO को नाइट्रोसो बोलते हैं। तो if I have a benzene substituted with nitroso, तो दो चीजें यहाँ पर है, एक तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एंड दूसरा नाइट्रोसो में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का जो पावर है वो काफी ज्यादा होगा। एट द सेम टाइम नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग नेचर का होगा, तो जब वो डोनेट करेगा तो देयर विल बी थ्रू द रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए ओपी पे डायरेक्ट होगा। लेकिन ओवरऑल नाइट्रोसो का माइनस आई इफेक्ट भी है, मतलब विड्रॉइंग नेचर का, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों केस में हेलो हो या नाइट्रोसो हो, the minus I is more dominant as compared to the plus M effect of the functional group, and that is why
the ring will be deactivated, but due to the resonance, the negative charge will be developed at ortho and para positions. Hence, these are the examples of deactivating but OP directing. मतलब टू समराइज, कुल मिलाकर तीनों केसेस मैंने वापस बताए हैं और उसमें कुछ एड ऑन एग्जांपल्स हैं, आई हैव डिस्कस्ड देम. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन पे एंड एनी ऑफ द शान रिएक्शन इज डन, देन बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और कौन से एग्जांपल में है, आप ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे डायरेक्ट करोगे. अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा तो आपको ये प्लस आर इफेक्ट के ऑर्डर के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. अच्छा, माइनस आर में डीएक्टिवेट कर रहा है, तो मान लो अगर मैं नाइट्रो और साइनो देता हूं, which will have more reactivity towards electrophilic substitution reaction? If I have nitrobenzene versus cyanobenzene, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा. ये डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, और NO2 is greater than साइनो का मतलब NO2 is more deactivating than साइनो. आ रहा है कुछ समझ में? नाइट्रो ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है ना, तो ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिकमिंग वेरी लेस, इज वेरी डिक्रीज्ड. एंड साइनो अगर बेंजीन पे रहेगा तो इट इज लेस डीएक्टिवेटिंग कंपैरेटिवली. तो जो लेस डीएक्टिवेटिंग है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम? कम. जो लेस डीएक्टिवेटिंग है वो ज्यादा हाँ, रिएक्टिव हो reactive. जाएगा ना. Yes, sir. ये नेगेटिव इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट है. So if there is a nitro on the ring versus a cyano on the ring, nitro is deactivating the ring more. मतलब it is making the benzene very much less reactive. तो cyano के comparison में nitro ज्यादा deactivate कर रहा है, तो ज्यादा reactive towards ESR कौन होगा? Fine. Pardon? साइनो. cyano, correct. तो जो प्लस आर में ऑर्डर दिया है वो आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी होगा. जो माइनस आर में डीएक्टिवेशन का ऑर्डर दिया है ना, उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर विल बी उल्टा ऑफ माइनस आर इफेक्ट. डू यू ऑल अग्री? Yes, sir. Reactivity here will be inverse to the minus R effect, as simple as that. मतलब जो भी ऑर्डर आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी का पता करना है वो खाली रिवर्स कर दो बस. ठीक है. और हेलो वर्सेस नाइट्रोसो में हेलो का माइनस आई स्टिल स्ट्रॉन्गर है, तो ये ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा. So this is the second type of questions which you could be observing with regards to the double ESR concept. ठीक है. अब ये तो हो गया मोनो सब्स्टिट्यूएंट का केस. अब डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है. मान लो अभी एक की जगह बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो बेस्ड ऑन द टू सब्स्टिट्यूएंट्स देयर आर मल्टीपल केसेस. या तो दोनों एक्टिवेटिंग हो सकते हैं, दोनों डीएक्टिवेटिंग हो सकते हैं, एक एक्टिवेटिंग हो सकता है, एक डीएक्टिवेटिंग हो सकता है, उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है. सो देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियोज. तो एक एक करके उसके केसेस को समझते हैं और उस केस में सब्स्टिट्यूशन कहाँ करना है, दैट इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड हियर. सो व्हेन टू substituents are already present on the ring, the third substituent place will be on a located place. अब वो लोकेशन किधर है
उसके लिए the rules for the substituent are as follows. Case 1. When two orthopara directors are meta to each other, the third substituent will not be located between them. तो जैसे यहाँ पर बेंजीन पे there is a methyl which makes it toluene and benzene पे there is chloro which is chlorobenzene. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों OP डायरेक्टिंग है, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. And methyl is activating, लेकिन chlorobenzene is Deactivate. Deactivate. deactivating. तो अब अगर एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय व्हिच ग्रुप? तुम लोग को एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब समझा? एक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन रिंग को ज्यादा रिएक्टिव बनाएगा, डीएक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन को कम रिएक्टिव बनाएगा. तो अगर मेरे पास एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो द सब्स्टिट्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय व्हिच ग्रुप? Activated. एक्टिवेटिंग ग्रुप. मतलब क्लोरो के रिस्पेक्ट से तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो रूल्ड आउट है. अब मिथाइल के बेसिस पे देयर आर टू अवेलेबल पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा. ठीक है, मान लो कि अगर ये पैरा ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ सम अदर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो आपके पास दो अवेलेबल ऑर्थो पोजीशन होगी. अगर पैरा है तो डेफिनेटली मेजर पैरा होगा. अगर मान लो पैरा भी ब्लॉक्ड है मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो दो ऑर्थो में से the substituent will never ever be placed between the two substituents because ये तीनों जब एक साथ आ जाएंगे there will be lot of Repulsion. repulsions. इसीलिए वो सब्स्टिट्यूएंट कभी भी इन दोनों के बीच में तो लोकेट नहीं होगा. तो अगर दो ऑर्थो पोजीशंस अवेलेबल है तो इन दोनों के बीच का ऑर्थो विल नेवर एवर बी सब्स्टिट्यूटेड. मतलब दो ऑप्शंस हैं जहां पर ये वाला ऑर्थो भी है और ये वाला ऑर्थो है, तो द प्रेफरेबल एंड द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी दिस ऑर्थो प्रोडक्ट. समझा? Yes, sir. कुछ और एग्जांपल्स मैं देता हूं. मान लो देयर इज अ मिथाइल ऑन द बेंजीन एंड OH ऑन द बेंजीन एंड दे आर पैरा टू ईच अदर. नाउ टेल मी द सब्स्टिट्यूशन विल बी डिसाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू OH group. OH ग्रुप बिकॉज इट इज मोर एक्टिवेटिंग. तो अगर ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली OH के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन होगा. अब पैरा तो आपका ऑलरेडी ब्लॉक्ड है ना, so now the available substitution will be at ortho with respect to OH. ortho with respect to OH. ये दोनों possible position है जो equivalent है. आ रहा है समझ में? Yes. ठीक है, you have to just understand the substitution का location. That's it. मान लो यहाँ पर there is anisole वाला compound and there is aniline वाला compound, let's say at the meta. So now the substitution will happen with respect to NH2. aniline because it is more activating than anisole. तो अब इसका ऑर्थो पोजीशन ये है और पैरा पोजीशन ये है. तो अगर पैरा अवेलेबल है तो डेफिनेटली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा प्रिफर्ड होगा. मान लो अगर पैरा भी ब्लॉक्ड है, मैं यहाँ पे मिथाइल डाल देता हूँ, तो इन तीनों में भी एनिलीन एक्टिवेटिंग ज्यादा है. ठीक है, तो अब ये दो ऑर्थो में से विच ऑर्थो विल बी मोर प्रिफर्ड, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला. तो जस्ट याद रखना, when two substituents are at meta position and if there are two available ortho positions, then this ortho which is between them will never ever substitute because of the repulsion and the instability. Clear है case? Yes, sir.
ठीक है, ये मैं पीपीटी शेयर करूंगा, तब ये केसेस लिख लेना. सिनॉप्सिस के एंड में देयर आर एक्स्ट्रा पेजेस व्हिच आर गिवन, यू कैन जस्ट मेक अ नोट ओवर देयर. प्लस आर, माइनस आर और एक्सेप्शन के एडिशनल एग्जांपल्स को भी आप ऐड ऑन करो सिनॉप्सिस में. एंड एंड में जो ये पार्ट मैं बता रहा हूँ उसको भी आप केस वाइज लिखते जाओ. आई शेयर द पीपीटी. Next, when both an orthopara director and a meta director is present on the ring, the third subsequent place depends on the OP director. अब orthopara director मतलब activating हो गया और meta director मतलब deactivating हो गया. तो जब activating है versus deactivating आता है तो obviously the substitution will be decided with respect to one which is activating. So it depends on the orthopara director. ठीक है, सो यहाँ पर देखो, I have N with ET2. Now this is a type of NR2 वाला substituent, right? Yes, sir. And CF3 is a strongly deactivating group. तो ये एक्टिवेटर है, ये डीएक्टिवेटर है. ठीक है, तो एक्टिवेशन के बेसिस पे द सब्स्टिट्यूशन विल बी डिसाइडेड. अब पोजीशंस अवेलेबल कौन कौन सी है? ऑर्थो और पैरा. वंस अगेन इन दोनों के बीच का ऑर्थो तो कभी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, या तो ये या तो ये. सिमिलरली अगर मेरे पास फ्लोरो है विच इज डीएक्टिवेटिंग वर्सेस अल्डिहाइड विच इज डीएक्टिवेटिंग, अब इन दोनों में ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन सा है? बोथ आर डीएक्टिवेटिंग, बट फ्लोरो ये है कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है. तो अब पहले तो सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है वो देखना है आपको. तो फ्लोरीन वर्सेस अल्डिहाइड विच इज मोर डीएक्टिवेटिंग? Fluorine. Fluorine because of stronger minus I effect which is more dominant over the plus M effect. तो फ्लोरो अगर ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है इसका मतलब अल्डिहाइड के बेसिस पे रिएक्शन डिसाइड होगा. और अब जो सब्स्टिट्यूएंट है या इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू CHO. नाउ यू हैव टू से मेटा विथ रिस्पेक्ट टू CHO. तो मेटा विथ रिस्पेक्ट टू CHO ये पोजीशंस अवेलेबल है और यहाँ पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? Yes, sir. Then when both groups are the same director, the third substituent depends on the stronger one. ये भी बता चुका हूं. अगर आपके पास दोनों ही OP डायरेक्टर है या दोनों ही मेटा डायरेक्टर है तो कौन सा ज्यादा एक्टिवेटिंग है या कौन सा कम डीएक्टिवेटिंग है उसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन डिसाइड होगा. तो NR2 वर्सेस मिथाइल के केस में NR2 इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड उसके ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बट पैरा तो ब्लॉक्ड है तो अवेलेबल पोजीशन आपके सिर्फ दो ऑर्थो पोजीशन होगी. सिमिलरली अगर आपके पास दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, मान लो एक नाइट्रो है और एक साइनो है, तब नाइट्रो वर्सेस साइनो में द सब्स्टिट्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय Cyano. साइनो. तो साइनो के मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी यहाँ इट्स नॉट ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रो, इट इज मेटा विथ रिस्पेक्ट टू साइनो. ये बोलने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गेटिंग इट? Yes, sir. एक और केस, व्हेन बोथ ग्रुप हैव सिमिलर डायरेक्टिंग इफेक्ट्स and are of same type and are para to each other, the third substituent depends on the less hindered one. तो दोनों ग्रुप अगर सेम डायरेक्टिंग नेचर के हैं, यानी ये भी अल्काइल है ये भी अल्काइल है, सो अल्काइल्स आर वी नो OP डायरेक्टर्स एंड बोथ हैव एक्टिवेटिंग नेचर. तो दोनों का सिमिलर डायरेक्टिंग इफेक्ट है और सेम टाइप के है, यानी दोनों अल्काइल टाइप के हैं और पैरा पे है, तो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट डिपेंड होगा on the less hindered one. तो methyl versus tert butyl is very much bulky. बल्कि मतलब ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा शो करेगा.
तो इसके ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन ना होकर मिथाइल के रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसके ऑर्थो पे हुआ होता तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता एंड इट वुड मेक द ग्रुप अनस्टेबल। समझा? इसलिए मिथाइल वर्सेस टर्ड ब्यूटाइल में मिथाइल के रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगा। That's it. These are the multiple cases wherein अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हुए तो वो जो अवेलेबल पोजीशंस है, 3 अवेलेबल पोजीशंस, वो उनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा, that is something to be understood. Is that clear? Yes, sir. So I have covered all the cases of the electrophilic substitution reaction. मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगा तो प्लस आर माइनस आर और एक्सेप्शन के बेसिस पे डिसाइड करना है। डाई सब्स्टिट्यूटेड या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगा तो उसके मल्टीपल केसेस को सोचकर यू कैन डिसाइड वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज गोइंग टू गेट अटैच्ड और लोकेटेड टू। So with this, I've completed with the synopsis of aromatic compounds. Let's start with the MCQs. Last part में carcinogenic, cancer causing poly aromatic compounds हैं जिसके examples आप just go through कर लो। तो cancer causing का concept क्या है? If you have fused benzene rings, मतलब दो या दो से ज्यादा benzene, then they are found to have cancer causing effects. तो ये जो इफेक्ट कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं इनको कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। Now let's start with the MCQs from the MCQ booklet. So starting with the first one, aromatic compounds burn with a sooty flame because. Answer should be simple. The fourth one. The fourth one, sooty flame is related with the percentage of carbon, and aromatic compounds have relatively a high percentage of carbon. इसीलिए it burns with a sooty flame. Which of the following is a non-aromatic compound? C. C. Pyridine is an aromatic compound with the lone pair localized. Furan is also an aromatic compound with the lone pair delocalized, having a pi electron density of 6 electrons. Cyclooctatetraene in the tub shape is non-aromatic because of the repulsions caused in the internal part of the ring. तो यहाँ पर ये एंटी अरोमेटिसिटी को अवॉइड करता है by converting into tub shape and it becomes non-aromatic. The last one is ferrocene, which is a sandwich complex. Can you tell me the molecular formula of ferrocene? It's a coordination compound. No one remembers ferrocene. Ferrocene is a coordination compound in which iron, as the central atom, was surrounded with cyclopentadienyl anion. And it's a sandwich complex because there were two of this C5H5 negative ions, which is sandwiched between the ion atom. तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ इस तरह से था। cyclopentadienyl and cyclopentadienyl. तो यहाँ पर Fe का चार्ज +2 हो जाएगा and this +2 and -2 makes this a neutral complex. करेक्ट। और ये तो अपना अरोमेटिक स्पीशीज ही है ना, C5H5 नेगेटिव. इट इज cyclopentadienyl anion. Yes or no? Yes, sir.
साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन, इसका कटायन जो है वो एंटी एरोमेटिक होता है और इसका न्यूट्रल कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, बट इसका जो अनायन है विद अ नेगेटिव चार्ज, इट हैज द 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड इज एरोमेटिक। तो फेरोसिन के अंदर भी जो ग्रुप है दैट इज एरोमेटिक। Next, the attacking electrophilic species in sulfonation of benzene is SO2, SO3, SO3H plus या both 2 and 3? When we do sulfonation, what do we have the reagent written as? Sulfonation में what is the reagent? Sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid which had written as HOSO3H, जिसको ब्रेक करके HO minus SO3H plus लिखा था, या फिर alternately we can use fuming SO3. Fuming SO3 is nothing but SO3 dissolved in concentrated sulfuric acid. तो उसके मैकेनिज्म में अगर आप SO3 को न्यूट्रल फॉर्म में यूज करते हो तो भी वो सल्फोनेशन करेगा, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में करो तो भी एज SO3H plus सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मतलब both are the electrophilic species which is involved in the sulfonation of benzene, that is option 4, both 2 and 3. Next, among the following weakest activating group is, now you can answer this. Then phenyl. Phenyl. अच्छा, इन चारों में मैं अगर ऑर्डर पूछूं तो which is the most activating out of them? NR2. NR2 followed by NH2. NH2, then the acetyl substituted aniline and C6H5. ठीक है, so इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो पूरा ऑर्डर जो मैंने दिया है that will be important. Next, benzene cannot undergo usually substitution, addition, elimination या oxidation. We've already seen the 3 categories of reactions. Eliminate. Elimination is not a usual reaction which benzene could undergo. Benzene can undergo substitution via ESR. Benzene can undergo addition because of the pi electron density. 3 reaction हमने देखे थे, hydrogenation, halogenation and ozonolysis. और oxidation यानी combustion reaction भी हो सकता है, लेकिन elimination is not a type of reaction which benzene undergoes. Next, the fastest ArSe2 reaction is given by. अब ये क्या है ArSe2? मुझे बताओ, SN जब लिखा था SN, what does it stand for? S is for substitution, N is for nucleophilic. So what will be SE? Electrophilic substitution. Electrophilic substitution reaction, and AR stands for Aromatic. aromatic. And 2 मतलब the kind of the mechanism will be bimolecular. तो ArSe2 का पूरा फुल फॉर्म हो गया aromatic इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन के शान रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो वही जो बेंजीन का शान रिएक्शन है दैट इज ArSe2 रिएक्शन, aromatic electrophilic substitution bimolecular या सिंपली aromatic ESR. तो अब फास्टेस्ट ESR रिएक्शन किसका होगा? फेनॉक्साइड, फेनाइल इथेनोएट, इथाइल बेंजीन या एनिलीन? Phenoxide. अनडाउटेडली फेनॉक्साइड, बिकॉज ये सबसे
ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो अब मुझे बताओ इन चारों में अगर ऑर्डर लिखना है तो सबसे एक्टिवेटिंग तो हो गया 1, उसके बाद aniline, एनिलीन, फिर phenylethanol, व्हाट इज फिनाइल इथेनोएट, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इथेनोएट, एट एट किसका नोमेनक्लेचर है ये? अल्काइल प्रीफिक्स प्लस ओएच किसका नोमेनक्लेचर है? आर सी ओ ओ आर डैश का नोमेनक्लेचर था, पहले आर डैश का नाम, देन आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स ऑफ आर एंड देन ऐड द वर्ड एच। किसका नोमेनक्लेचर है ये? तुमको समझता है ये कौन सी फैमिली ऑफ कंपाउंड है? Ester. बोलने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? Now tell me, ester versus alkyl, which will be activating? alkyl, ऑब्वियसली ना, बिकॉज अल्काइल तो प्लस आर का एग्जाम्पल हो गया और एस्टर आपका माइनस आर में है। तो इन चारों ऑप्शन में ये तो सबसे एंड में आएगा, ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज इट हैज अ माइनस आर इफेक्ट, और बाकी प्लस आर है जिसका ऑर्डर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो कंप्लीट ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR का 1432। So I'm not just solving the question based on what is asked. हर क्वेश्चन में अगर ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसका एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप deactivates only OP positions, only M position, OP more than meta या meta more than OP। सोच के आंसर करो। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, yes, third any one. answer? The third one, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और मैंने हमेशा आपको बोला है रेजोनेंस अकर्स ओनली एट Also para. ऑर्थोपैरा। मेटा पे रेजोनेंस सोचना गुना है। गुनाह है। मतलब जो भी एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन का इफेक्ट है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि EWG की वजह से ऑर्थो और पैरा पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव हो जाता है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इनको अटैक नहीं कर सकता, तो अवेलेबल पोजीशन M है। तो M भी डीएक्टिवेट हुआ है, लेकिन OP पे पॉजिटिव आने की वजह से वी से द डीएक्टिवेशन हैज मोर हैपेंड फॉर OP and rather than the meta. That is why in this case we say that deactivating groups make the electrophile meta directing. So a deactivating group like nitrocyanosulfonic acid deactivates ortho and para position more than the meta position. Understood? Yes, sir. Next, amongst the following, weakest activating group is कर चुके हैं ये? Second one. नहीं। NHCOCH3 is more activating than a methyl or any of the alkyl group. सबसे कम, इसका तो पूरा ऑर्डर भी मैंने देखो पीछे लिखा है सेम, ये रहा।
यही ऑर्डर है ना? आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. खाली इसमें फिनाइल की जगह मिथाइल ऑप्शन में था, तो अब पूरा ऑर्डर ध्यान रखो. वंस अगेन द ऑर्डर विल बी NR2 will be most activating out of the options given, followed by NHR, then NHCOCH3, and then the methyl group. Which of the following set of groups are deactivating but OP directing? 3. दो ही एग्जाम्पल है उसके. एक तो हैलोजेंस मैंने आपको स्टार्टिंग से बता के रखा है, उसके अलावा NO एज एन एड ऑन मैंने आज बताया आपको. तो अब केस 3 यानी एक्सेप्शन में क्लोरो एंड नाइट्रोसो आर द टू एग्जांपल्स और फंक्शनल ग्रुप्स which are deactivating but OP directing. Next, nitration of benzene in presence of concentrated H2SO4 at 100 degrees Celsius gives benzene का nitration in the presence of concentrated H2SO4, which is nothing but the nitrating mixture. Nitrobenzene. What is the? Definitely nitrobenzene should be the answer. लेकिन ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे हो ना, तो देयर इज अ डबल नाइट्रेशन व्हिच एक्चुअली हैपेंस. मतलब यहाँ पर एक बार तो बेंजीन का नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन दे देता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर बीइंग वेरी हाई द नाइट्रेशन अगेन हैपेंस. अब जब सेकेंड टाइम नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रो मेक्स द रिंग ओपी डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर? Meta. Meta. मेटा. तो द नेक्स्ट नाइट्रो यानी सेकेंड नाइट्रो जो है दैट विल गो एट द मेटा पोजीशन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी Meta dinitrobenzene. मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन. समझा? Yes, sir. ठीक है. सो ये ध्यान रखना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 generally gives nitrobenzene undoubtedly, but at 100 degrees Celsius, because the temperature is being kept high, the double nitration will take place and it gives you the 2 nitro meta with respect to each other, and that's meta dinitrobenzene. Okay, now just one more thing. ये जो B2 है उसमें बेंजीन कैनॉट अंडरगो एलिमिनेशन, ये तो हमने डिस्कस किया. ऑक्सीडेशन में बेंजीन का कंबशन के अलावा एक और रिएक्शन है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का. नॉट एग्जैक्टली बेंजीन का, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो साथ में बता देता हूं. इफ आई हैव अ मिथाइल ऑन द बेंजीन दैट इज टोलुइन, एंड इफ this is oxidized with alkaline KMnO4, which we know is a very strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसके अलावा इसका एक भाई दैट इज एसिडिफाइड डाइक्रोमेट. तो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में द अल्काइल present on the benzene gets completely oxidized into the carboxyl group. मतलब here the toluene will be oxidized into benzoic acid. Benzoic acid. अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में टोलुइन ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में बदल जाता है. इनफैक्ट टोलुइन के अलावा एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल, they all will oxidize finally to give you benzoic acid irrespective of number of carbons present on the ring. मतलब चाहे मिथाइल हो with 1 carbon, इथाइल हो with 2 carbon या so on, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड देगा. तो इसमें एक कंडीशन है कि द कार्बन बॉन्डेड टू द रिंग शुड हैव एटलीस्ट 1 H, यानी बेंजाइलिक H होना जरूरी है.
मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है and I have a tert-butyl group, tertiary butyl group. Then will this undergo the oxidation with alkaline KMnO4? No. No. तो ये ध्यान रखना कि मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल यानी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल कोई भी हो, वो सब ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में बदलते हैं, लेकिन टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप अगर बेंजीन पे हो तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द बेंजाइलिक एच। यानी यहाँ पर मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, बेंजाइलिक एच होना जरूरी है। सिंस देयर इज नो बेंजाइलिक एच हियर, देयर इज नो रिएक्शन। क्लियर है? Yes, sir. तो ये ऑक्सीडेशन का एड ऑन रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल बेंजीन के लिए इंपॉर्टेंट है। टोलुइन या लाइकवेज कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, which of the following structures correspond to the product expected when excess of benzene reacts with methylene dichloride in presence of anhydrous AlCl3? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस ऑफ बेंजीन being reacted with CH2Cl2. तो जब बेंजीन एक्सेस में है तो ओवरऑल 2 moles of the benzene get reacted with CH2Cl2. अब दोनों बेंजीन से H gets eliminated and they combine with the Cl to form 2 moles of HCl. And अब बचेगा आपके पास CH2 group that gets substituted between the two benzene rings. तो अब यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है बेंजीन और मिथाइलिन डाइक्लोराइड का इज डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मतलब आजू बाजू 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं एंड इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ 1 कार्बन दैट इज मीथेन। तो क्या हुआ, एक्सेस ऑफ बेंजीन में 2 बेंजीन का कपलिंग हुआ और बीच में देयर इज अ मिथाइलिन ग्रुप व्हिच गॉट बॉन्डेड बिटवीन देम, giving you the product as option 4 which is named as diphenyl methane. एक important question. समझा? Yes, sir. Next, for preparing monoalkyl benzene, acylation process is preferred than direct alkylation because for preparing monoalkyl benzene, acylation process is preferred than direct alkylation because. अब पहले इसका मतलब समझा देता हूं। If I want to convert the benzene, let's say into N-propyl benzene. So tell me, if I want to convert the benzene into N-propyl benzene, what reaction should I think about? बेंजीन टू अल्काइल बेंजीन के लिए कौन सा शान रिएक्शन सोचोगे? Alkylation. अल्काइलेशन। और एन प्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए एन प्रोपाइल क्लोराइड यूज करोगे। बट जब हम बेंजीन के साथ एन प्रोपाइल क्लोराइड को यूज करते हैं, डू वी गेट द एन प्रोपाइल बेंजीन एज द प्रोडक्ट? No, we get isopropyl benzene. No, we get isopropyl benzene because there is a Hydride shift. hydride shift. There is a carbocation rearrangement by hydride shift which converts the N-propyl carbocation into isopropyl carbocation. मतलब बेंजीन से N-propyl बेंजीन आप अल्काइलेशन के थ्रू कभी भी कैरी आउट नहीं कर सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है।
दूसरा प्रॉब्लम, अल्काइलेशन जब करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉली अल्काइलेशन टेकिंग प्लेस। तो जैसे नाइट्रेशन जब करते हैं तो कंटिन्यूअस नाइट्रेशन होकर पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स बन सकता है, वैसे बेंजीन में पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है और दूसरा प्रॉब्लम ये है। तो ऑप्शंस में थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, अब ये पहला जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, यानी अगर मुझे बेंजीन को एन प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो उसका कन्वर्जन दो स्टेप से किया जा सकता है। पहला, तो आई हैव टू कन्वर्ट द बेंजीन इनटू अ फिनोन कंपाउंड। ना बेंजीन को फिनोन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट रिएक्शन डू वी यूज? बेंजीन टू फिनोन, शान का कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे? Acylation. असाइलेशन। और मुझे 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप यहाँ पर चाहिए, तो मैं 3 कार्बन का असाइल ग्रुप ले लूंगा, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ Cl, दैट इज प्रोपेनॉइल क्लोराइड या प्रोपियोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ एडिशनल रिएक्शन है जो अल्डिहाइड कीटोन्स में रिपीट होगा, बट सिंस वी आर टॉकिंग ओवर हियर आई विल जस्ट डिस्कस दिस एड ऑन रिएक्शन। तो क्या करते हैं हम, बेंजीन को असाइलेशन करते हैं 3 कार्बन वाला असाइल क्लोराइड के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। so now acylation होकर the group will first of all break down as plus minus, और plus वाला part will act as electrophile and substitute the ring giving you C double bond O CH2 CH3, which will be named as propiophenone। प्रोपियोफिनोन, राइट? ये समझा? Yes. Yes, sir. अब प्रोपियोफिनोन से अगर मुझे एन प्रोपाइल बेंजीन चाहिए तो व्हाट इज द ग्रुप विच आई शुड चेंज? कौन सा ग्रुप मुझे चेंज करना पड़ेगा? बोलो। प्रोपियोफिनोन से एन प्रोपाइल बेंजीन कन्वर्ट करना है मुझे, विच ग्रुप शुड बी चेंज्ड? अरे भाई जस्ट कंपेयर बेंजीन बेंजीन, CH2 CH3 सेम है, CH2 CH3 सेम है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा सो दैट आई कैन गेट दिस कन्वर्जन? Remove the double bond O. Change the double bond O, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप इनटू मिथाइलिन ग्रुप। ना कार्बोनाइल को मिथाइलिन में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर 2 reactions which are available, and these are both reduction reactions because इसमें हम ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को ऐड करना इज नथिंग बट रिडक्शन। तो पहला जो रिडक्शन है दैट कुड बी कैरिड आउट विद जिंक अमालगम एंड concentrated HCl, एंड दूसरा जो रिडक्शन है दैट कैन बी कैरिड आउट विद H2N NH2 जिसको हाइड्रोजीन बोलते हैं, followed by reaction with KOH glycol। अब ये दोनों में रिएक्शन होता कैसे है दैट इज लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन द चैप्टर, बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर कि अगर प्रोपियोफिनोन से एन प्रोपाइल बेंजीन करना है, यानी कार्बोनाइल से मिथाइलिन का कन्वर्जन करना है, तो उसके लिए 2 अवेलेबल रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जिसको क्लेमेंसन्स रिडक्शन बोलते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन विद जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और दूसरा है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, WK रिडक्शन या वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन are the 2 reactions to get benzene converted into N-propyl benzene। तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि बेंजीन से N प्रोपाइल बेंजीन डायरेक्टली अल्काइलेशन से तो नहीं कर सकते हैं। The reason is definitely clear, यानी कोई भी प्राइमरी अल्काइल बेंजीन पे अल्काइलेशन के थ्रू अटैच करना पॉसिबल नहीं है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 रिएक्शन करते हैं। पहला रिएक्शन है असाइलेशन और दूसरे रिएक्शन में कार्बोनाइल को रिड्यूस करते हैं इनटू मिथाइलिन बाय 2 अवेलेबल रिएक्शन, one is Clemenson's reduction and other is Wolff-Kishner reduction. Clear? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो प्रॉब्लम के हिसाब से सोल्यूशन को याद रखोगे ना तो रिएक्शन के कन्वर्जन्स अपने आप याद रह जाएंगे. यू डोंट हैव टू मग अप द टाइप ऑफ द कन्वर्जन. एक बार फिर से, बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन डायरेक्ट अल्काइलेशन से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एन प्रोपाइल बेंजीन मिलेगा ही नहीं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन मिल जाएगा. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम असाइलेशन करते हैं और उसके बाद हम कोई और रिएक्शंस के थ्रू अल्काइल बेंजीन को फॉर्म करते हैं. तो क्वेश्चन में यही लिखा है कि फॉर प्रिपेयरिंग मोनो अल्काइल बेंजीन असाइलेशन प्रोसेस इज प्रेफर्ड देन डायरेक्ट अल्काइलेशन, क्योंकि असाइलेशन के थ्रू डिजायर्ड प्रोडक्ट को ला सकते हैं. और अल्काइलेशन का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए. ठीक है, गेटिंग इट? Yes. Next, nitrobenzene does not undergo Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions because now there are some functional groups जिसमें शान का डबल ए रिएक्शन यानी Friedel-Crafts के alkylation और acylation reactions नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? अब क्यों नहीं होते हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं. तो अगर मेरे पास बेंजीन पे NO2 है, नाइट्रो, and if I am carrying out acylation reaction, that is acetylation with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. Now what is the function of anhydrous AlCl3? काम क्या है AlCl3 का इसमें? AlCl3 का हर रिएक्शन में एक ही काम था. What was that? Hello. Forming the ions. Forming the ions, that is to break down the reagent heterolytically. Very good. तो अगर मान लो किसी रीजन की वजह से अल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अवेलेबल ही ना हो, then it will not be able to break down this into ions. अगर आयंस जनरेट नहीं हुए तो इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा. तो उस केस में फ्रीडल-क्राफ्ट का अल्काइलेशन, असाइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो अब यहां पर होता क्या है, नाइट्रो में देयर इज N double bond O coordinated with O and oxygen is having lone pairs. अब ये लोन पेयर क्या हो जाता है, डोनेट हो जाता है टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्यूमिनियम, जिसकी वजह से दिस नाइट्रो फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द AlCl3 एंड जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना देता है तो जो पर्पस से हम AlCl3 को यूज कर रहे थे ब्रेक डाउन करने के लिए वो पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ. तो बिकॉज ऑफ दैट द फर्दर रिएक्शन डजंट प्रोसीड. समझा? Yes, sir. In fact, phenol, aniline and nitrobenzene ये तीनों के डबल ए रिएक्शंस नहीं होंगे, डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, बिकॉज फिनॉल में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एनिलीन में भी ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है
और नाइट्रोबेंजीन में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो जहां जहां लोन पेयर होगा वहां पे Al अफेक्ट हो जाएगा and the purpose of AlCl3 will not be solved over there, and that is why the reaction will not proceed. So the answer is it forms a complex with AlCl3 in which the ring is highly deactivated by the strong electron withdrawing effect of the complex group which is getting formed. Clear? समझा? Yes, sir. Okay, that's it. I'll stop here for today. For the next session, you complete the MCQs of the section A, B, and C. कुछ और B के कुछ important MCQs है that I'll discuss in the next session. But A, B, and C तक आप solve करके रखोगे. आगे के sections फिलहाल के लिए नहीं करना है because they are related with the chapters of 12th. Once we complete them in the 12th syllabus, we will be able to solve the MCQs from here. ठीक है? और जो मॉड्यूल 2 है वो आप सॉल्व कर सकते हो मॉड्यूल 2 क्लास वर्क, ये आप स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। तो नेक्स्ट सेशन के पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू सॉल्व सेक्शन ABC फ्रॉम द मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर लो आप। ठीक है? और भी कुछ MCQs हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। आज आप फिलहाल 22 तक जो मैंने डिस्कस किया है उसको रीसॉल्व करके try solving other MCQs from the section B and C also. Okay, Yes. Yes. fine. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.